So if we talk about India, India is very most of the population in India are undernourished. There are many rural areas, people and children, mainly children, are undernourished, and undernutrition is very common in India. So hello everyone, myself Fatima Anam Zafar from Belgodia's University and from Swasti Sukham Care Foundation. Today, welcome back to National Nutrition Month Myths and Facts series. Yesterday we talked about obesity. Now we are going to talk about or burst the myths about undernutrition with Nupur Gupta ma'am, senior dietitian in Delhi. Hello ma'am. Hello, Fatima. Thank you for inviting me How are here. you Thank ma'am? you, Swasti Sukham. Thank you for मतलब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लाने के लिए. Thank you. Ma'am, we are glad to have you together. Okay. Thank Would you you. help us to burst some myths? Yeah, sure. Just ask. Yeah. So the first is undernutrition only happens in poor or rural community. Undernutrition, definitely when in a poor communities, we can see that because of the lack of ability of the food, the people in the poor areas, they are undernourished. But if we compare, if we see in the rural areas, in the urban areas also, there is a higher percentage of the persons who are undernourished because their lifestyle is so much busy, or you can say that they are picking up the wrong food choices. They have lots of foods available, but still lack of awareness is there ki how to balance their meals, what to eat, what not to eat. Because of these all problems, they are categorized under nutrition. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि Okay. सिर्फ पुअर And एरियाज में ही होते हैं, अर्बन एरियाज में भी आपको मिलेंगे. ओके ओके एंड ये कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन हो वो 3 टाइम्स मील खाए तो वो कभी अंडर नरिश नहीं हो सकता. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ मील्स दे आर ईटिंग. ठीक है, अगर आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हो इट्स गुड, बट वो मील्स बैलेंस होने चाहिए. ठीक है, अगर वो मील्स बैलेंस नहीं है एंड आप मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द फास्ट फूड, टुवर्ड्स द जंक फूड या पैकेट फूड ज्यादा ले रहे हो, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ. आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं. देन अगर आप And what about the underweight people? Only those people get undernourished. तो वेट से हम मेजर नहीं कर सकते कि वो मतलब प्रॉपरली नरिश्ड है या माल नरिश्ड है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या नहीं है ना. नॉर्मल वेट पर्सन का भी आप चेक करोगे तो उनका हो सकता है कि मसल मास कम हो, फैट परसेंटेज ज्यादा हो. इट डिपेंड्स अपॉन देयर रूटीन, देयर लाइफस्टाइल एंड वॉट एवर द फूड चॉइसेस दे आर ऑप्टिंग. तो वेट का कोई रिलेशन Okay. नहीं होता है कि हम वेट से हम जज कर सकें कि वो हेल्दी है या अंडर नरिश्ड है या मतलब ओवरवेट का तो ऑब्वियसली पता चलेगा, बट वेट इज नॉट द राइट क्राइटेरिया टू जज. हाँ मेनली यही होता है ना कि सब वेट देखते हैं और फिर कहते हैं आप माल नरिश्ड हैं और ये है. हाँ, बट अगर थिन पर्सन आप देखते हैं, अगर ओबीज कैटेगरी में नहीं है, पर्सन इज नॉर्मली मतलब हेल्दी है, वेट भी उसका एक्यूरेट है, बीएमआई भी एक्यूरेट है, बट स्टिल ही कैन हैव एनी टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीज. आपका फैटी लीवर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी उनको हो सकते हैं. तो वेट से आपके इंटरनल हेल्थ का कोई लिंक नहीं होता है. Okay. And the undernutrition is only caused by poor food intake. हाँ, ऑब्वियसली अगर आपके फूड चॉइसेस अच्छी नहीं है एंड आप नंबर ऑफ मील्स नहीं ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली योर बॉडी विल बी इन माल नरिश कंडीशन. एंड प्लस इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द क्रॉनिक डिजीज जिसकी वजह से बॉडी में आप प्रॉपर खा तो रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है उसका न्यूट्रिशन, देन ऑल्सो मतलब यू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माल नरिश, अंडर न्यूट्रिशन. Okay. Next is that skinny body equals to undernourished and healthy body is equal to well nourished. हाँ, you're ट्रू. आजकल की मतलब जेंजी जनरेशन में तो वी कैन से द गर्ल्स हु आर मोर स्किनी तो दे आर मोर फिट. ठीक है, वो Yes. appearance wise physically they look very good, but internally maybe they have a very
lack of many vitamins, जो हमारा micronutrition होता है, maybe they have the deficiencies of that, and muscle mass भी उनका कम होता है ना? So skinny doesn't mean that you are healthy. And similarly, if you are in a healthy body is there, then also we cannot say that you are fully healthy and you're fully nourished. In the both the scenarios, nutritional deficiencies will be there. Again, it depends upon कि आप exercise करते हैं, आपका eating pattern क्या है, आप balanced meals लेते हैं या नहीं लेते हैं. So everything depends upon their food choices and the food intake. So हम उनके Okay. appearance को देख के हम judge नहीं कर सकते. Yes, ma'am. एंड मैम मेनली कहते हैं कि जो पतले लोग मेनली अंडर नरिश्ड लोग उन्हें कहते हैं कि यू शुड अवॉइड एक्सरसाइज। नहीं, ऐसा तो नहीं कहते हैं, उनको भी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, इससे उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, उनका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा, इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, एंड प्लस जब वो एक्सरसाइज के साथ उन्हें अच्छा अपना फूड इनटेक भी इंप्रूव करना है, तभी वो उसकी बॉडी की रिकवरी हो पाएगी। ओके। एंड जो पीपल जो मस्कुलर हैं या फिर जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो वो कभी अंडर नरिश्ड नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जो एक्सरसाइज कर रहे हैं सो उनको तो अपनी न्यूट्रिशन का ज्यादा ख्याल रखना है। अगर वो नहीं रखेंगे तो उनकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आ जाएंगी, लाइक देयर विल बी डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, और जिसकी वजह से उनको इंजरी होने की चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, तो उन लोगों को अपना ज्यादा ध्यान रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। ओके। एंड द लास्ट इज ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड प्रिवेंट्स अंडर न्यूट्रिशन। ईटिंग लॉट ऑफ फूड, यस। देखिए क्वांटिटी ऑफ फूड इज नॉट रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द फूड ना। अगर आप क्वांटिटी में खा रहे हैं तो अगेन इट शुड बी बैलेंस्ड। अगर वो बैलेंस नहीं है, आप एक्सेस ऑफ मतलब ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो आपका कैलोरी इनटेक ज्यादा हो रहा है, तो दैट कैन लीड टू द ओबेसिटी। ओबेसिटी के साथ साथ प्लस यू आर गेटिंग माल नरिश्ड। तो ओके। ओवर ईटिंग मतलब अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, देन योर फूड चॉइसेस शुड बी गुड। आपको अपना जो मील आप ले रहे हैं तो आपको देखना है कि वो बैलेंस है या नहीं है। एवरी टाइम यू कैन नॉट पिक द पैकेट फूड और द प्रोसेस्ड फूड। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। वेलकम फातिमा। Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Please stay tuned for the next Mythbuster series.